Good afternoon, everyone. So, in this tutorial, we are going to discuss your home assignment 5. So, अपनी assignments and solutions निकाल लो. Ready? Now, the first question that we are going to discuss is the fifth one. Right? So, I need to solve this equation using equivalence of equations. Right? Equivalence of equations. याद है सबको? हमने पिछली बार लेक्चर में पढ़ी थी. So, let's apply that now. मुझे solve करना है using equivalence of equations, right? Solution as in मतलब मुझे ऐसी x की values ढूंढनी है which satisfy this equation, right? Basically, I'm interested in the values of x, right? But let's just look at the equation first. यहाँ पे square root है, यहाँ पे भी square root है, right? एक बात बताओ, मैं x को -50 रख सकती हूँ? Can I put x as -50? अगर मैं यहाँ -50 रखती हूँ, ये अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी. स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव, एज इन अगर मैं -50 रखती हूँ, so that is -99. Root of -99. Does this make sense? Absolutely not. Because we are interested in the real numbers, right? Root of -99 is definitely not a real number, right? तो सबसे पहले तो मैं ये ढूंढना शुरू करूं, where is this thing defined? Because यहाँ पे तो डिफाइंड ही नहीं है. बोल ही नहीं सकती रूट of -99 क्या होगा in terms of real value. I can't say anything about it, right? So I need to look where this thing is defined. Now this thing, the root of 2x plus 1, ये defined होना चाहिए, right? That means इसके अंदर वाली क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? It should be positive, as in 2x plus 1 should be positive, or I can say should be greater than equal to 0. Yes, in today's lecture when I say positive, I mean greater than equal to 0, even though मुझे non-negative बोलना चाहिए, but I'm abusing the word in today's lecture. Alright? So, only for these values of x, जो भी मैं values निकालूंगी, only for this will this thing be defined. Right? अभी तो हमने इसकी बात करी है. ये भी quantity है. ये भी square root वाली quantity है. That means, in order for this to be defined, the inside quantity should be greater than equal to 0. As in, x plus 3 should be greater than equal to 0. ये भी डिफाइन होनी चाहिए, ये भी डिफाइन होनी चाहिए. That means this should also hold and this should also hold. दोनों simultaneously hold होने चाहिए, right? Now, इसका मतलब क्या है? Now, 2x plus 1 greater than equal to 0. That means I can say 2x is greater than equal to -1 and x is greater than equal to -1/2. Right? And x plus 3 greater than equal to 0, I can say x is greater than equal to -3. X is greater than equal to -3. Right? Yeah, that's fine. This should also be satisfied and this should also be satisfied. Means ऐसे numbers चाहिए जो -1/2 से भी greater हो and -3 से भी. Really, ऐसे number कौन से होंगे? जो x greater than equal to -1/2 हो. नहीं समझ आया? एक बार नंबर लाइन पे देख लेते हैं. Right? So this is my 0, half, and somewhere down the line, ये half, ये 1 बना लेते हैं, ये 2, and this is 3, minus. Right? So x is greater than equal to -1/2. Right? Greater मतलब किस साइड करना चाहिए मुझे? Greater मतलब this side. X is greater than equal to -1/2. And then x is greater than equal to -3. So that means x should be greater than equal to -3. मतलब ये वाले numbers. अब ये भी satisfy होना चाहिए और ये भी satisfy होना चाहिए. That means numbers यहाँ पे भी आने चाहिए, numbers यहाँ पे भी आने चाहिए. एक बात बताओ,
इसके आगे वाले नंबर सारे इंक्लूड तो हो रहे हैं, ये भी आ रहे हैं और डेफिनेटली ये वाले नंबर्स यहाँ पे भी तो आ रहे हैं। तो ये वाले नंबर्स है कौन से? x greater than equal to -1/2, right? So in order for this to be defined, this as well as this, x की कौन सी वैल्यूज कंसिडर करनी है? ओनली x greater than equal to -1/2। सिर्फ इन्हीं वैल्यूज के लिए मैं चेक करूंगी कि सोल्यूशन आ रहा है कि नहीं। ऑलराइट, ये मैंने निकाल लिया। अब लिख लेते हैं तो x greater than equal to -1/2, राइट? नाउ अब इक्विवेलेंस टेस्ट नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करती हूँ, ऑब्वियसली स्क्वायरिंग करनी है, राइट? अब यहाँ पे दोनों रेडिकल साइन इन्वॉल्व है, तो स्क्वायरिंग ऐसे नहीं करती, मैं ट्रांसपोज कर देती हूँ, राइट? तो मेरा स्टेप है √2x + 1 इक्वल टू 5 माइनस √x + 3, राइट? अब दिस स्टेप से यहाँ पे गई, ये वैल्यूज यहाँ पे भी आएंगी, बिकॉज सिर्फ इन्हीं वैल्यूज के लिए मैं बात करूंगी। सोल्यूशन ढूंढना है, वो सोल्यूशन सिर्फ इसी के अंदर चेक करूंगी मैं, इसके बाहर तो सोल्यूशन हो ही नहीं सकता, राइट? अब इस स्टेप से इस स्टेप में गई, कोई इम्प्लीकेशन आ रही है या इक्विवेलेंस आ रही है? अच्छा, इसको सोचने का सिंपल वे होता है, तुम यहाँ से यहाँ गए, अब तुम मुझे बताओ, तुम यहाँ से वापस जा सकते हो यानी वो बात, ऑब्वियसली दोबारा से इसको यहाँ पे रख दो। So that means these are equivalent steps since you can go back. तुम ये देख लिया करो, अगर तुम वापस जा सकते हो that means equivalent step है, अदरवाइज नहीं है, राइट? अब नेक्स्ट स्टेप इज स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करते हैं। So this is 2x + 1 and this is, इसको भी स्क्वायरिंग कर दें, 25 plus x plus 3 minus 2 into 5 that is 10 √x + 3। इतनी कैलकुलेशन कर लेते हो, राइट? डायरेक्टली ओपन अप कर दिया मैंने। अब एक बात बताओ, यहाँ पे x greater than equal to -1/2 आ गया, राइट? अब मैंने यहाँ पे लगाना है, इम्प्लीकेशन लगानी है, इक्विवेलेंस लगानी है, चेक करते हैं। मैं इस स्टेप से यहाँ पे, राइट, कैन आई गो बैक टू दिस स्टेप? कैन आई? स्क्वायरिंग कर दिया मैंने, अब देख लो एक बार, सेम सिनेरियो। अच्छा देखो, 8 = 8, राइट? स्क्वायरिंग करी, मैं पहुंच गई 64 = 64। अब मैं यहाँ से यहाँ तक जा सकती हूँ डायरेक्टली, मैंने यहाँ पे स्क्वायरिंग की थी ना, 8² = 8², राइट? वापस डायरेक्टली यहाँ जा सकती हूँ? एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। क्यों? मैं 64 को -8² भी तो लिख सकती हूँ, तो वापस जाने में देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट? बिकॉज प्रॉब्लम ये होती है कि ये वाला साइन और ये वाला साइन में भी डिफरेंट हो जाए, 8 = -8 तो नहीं हो सकता, राइट? अब मैंने जब स्क्वायरिंग करी, मुझे वापस जाना है, वापस जाने के लिए ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, मतलब 8 = 8 चाहिए था, राइट? तो 8 का साइन पॉजिटिव है, इसका साइन भी पॉजिटिव है। प्रॉब्लम तभी होती थी जब 8 आता था एंड साथ में -8 आता था, साइन चेंज, तो सेम थिंग मैं यहाँ लगाती हूँ। अब वापस जाना है ना, अब इसका साइन और इसका साइन सेम होना चाहिए, राइट? ये तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 1, ये तो पॉजिटिव है। दैट मीन्स आई नीड टू मेक श्योर दैट दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। दैट मीन्स आई नीड टू राइट 5 minus √x + 3 should be greater than equal to 0, राइट? तभी मैं वापस जा पाऊंगी। यहाँ से जहाँ जाने के लिए आई नीड टू मेक श्योर कि अगर ये पॉजिटिव है, दिस शुड बी पॉजिटिव एज वेल, राइट? तो अब देखते हैं, ये तो इनइक्वालिटी इजीली सॉल्व हो जाती है। ये है -√x + 3 greater than equal to -5। अब -1 से डिवाइड करना है, राइट? दैट इज
नंबर से डिवाइड किया, so that means the sign of inequality will reverse, right? अच्छा ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, स्क्वायरिंग कर सकते हैं. So x plus 3 should be less than equal to 25. Or shall I say x is less than equal to 22, right? Now यहाँ पे आ गया, मतलब अगर मुझे इस स्टेप और यहाँ से जाना और इक्वलेंट स्टेप बनाने हैं, तो दैट मीन्स ये चीज भी सेटिस्फाई होनी चाहिए. यहाँ पे लिखा था x greater than equal to -1/2 and x should be less than equal to 22, right? अब ये वाली इनइक्वालिटी हम अच्छे से नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं. चेक करना जरा कैसे लिखेंगे इसको. चेक इट आउट, देखो देखो कौन सा होगा ये. वो बोल रहा है अगर समझ नहीं आता नंबर लाइन बना लिया करो, सिंपल, राइट. ही सेज -1/2 से बड़ा है, राइट. -1/2 इसको 0 बना देते हैं एंड यहाँ पे कहीं 22. यस मेरा स्केल खराब है एज यूजुअल, बट अज्यूम ही सेज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2. बना दिया. ही सेज x इज लेस देन इक्वल टू 22, तो लेस देन इक्वल टू मतलब यहाँ पे अब ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए. दैट मीन्स नंबर यहाँ पे भी लाई करना चाहिए, यहाँ पे भी लाई करना चाहिए. तो कॉमन पार्ट कौन सा है? मतलब x कौन से कहाँ तक लाई करेगा? -1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 22. x यहाँ लाई करना चाहिए. ऑलराइट, तो मेरी कंडीशन चेंज होगी, तो अब वो लिखते हैं. तो क्या आएगा? -1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 22. सिंस ये मैंने एडिशनल कंडीशन लगा दी है, दैट मीन्स आई कैन गो बैक टू दिस स्टेप. तो इक्विवेलेंस आ जाएगी, राइट. अब सिंप्लीफिकेशन कर ले, इसको यहाँ ले आते हैं. दिस इज x, दिस इज 28, यहाँ पे -27, राइट. -10 इक्वल टू -10 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3, राइट. देन अगेन अब क्या करें? स्क्वायरिंग करना है बिकॉज यहाँ पे रेडिकल साइन है और हमारे यहाँ पे है -1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 22, राइट. हाँ, सबसे पहले ये इक्विवेलेंस स्टेप लिखा हमने. अच्छा मैं यहाँ से यहाँ तक वापस जा सकती हूँ. कैन आई गो बैक? एब्सोल्युटली. मैंने तो सिर्फ कॉमन लाइक टर्म्स को कंबाइन ही किया है. डेफिनेटली इक्विवेलेंस स्टेप है. नाउ नेक्स्ट यहाँ पे रेडिकल साइन है, उसको रिमूव करना पड़ेगा. दैट मीन्स आई नीड टू स्क्वायर इट, राइट. Then again square it. Okay. So this is x square minus 54x plus 27 square, that is 729 equal to 100 into x plus 3. Right. Now ये तो मैंने लिख दिया, स्क्वायरिंग करती हूँ. But is this step equivalent to this step? Absolutely not. स्क्वायरिंग आ गई दोबारा से, मतलब इक्विवेलेंस गायब हो गई. इट हैज डिसअपीयर्ड. दोबारा से बनानी पड़ेगी बिकॉज मैं इस स्टेप से वापस इस स्टेप पे नहीं जा सकती, राइट. अब एक बात बताओ, अगर मेरे को क्या मेक श्योर करना था दैट साइंस रिमेन द सेम. रिमेंबर 8 इज इक्वल टू 8, 8 स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर, राइट. यहाँ से वापस जाने के लिए आई नीड टू मेक श्योर कि साइन सेम है. ये 8 है, ये 8 है, साइन चेंज नहीं होना चाहिए. So that means इसका साइन and this sign should be same. अब वो करना है. अब ये कैसे देखें? अच्छा इस नंबर को देखना, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3, राइट. ये पॉजिटिव है. अच्छा इसके साथ मैंने एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई किया, राइट. So that means ये क्या होगा? अ नेगेटिव नंबर, राइट. साइन सेम होना चाहिए, मतलब अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या होना चाहिए? नेगेटिव. अब तुम बोलोगे मैम अभी तो हम पॉजिटिव की बात कर रहे थे. ओके नेगेटिव आ गया ना. देखो -8 इक्वल टू -8 स्क्वायर किया, वापस पहुंच गए. अब आई नीड टू मेक श्योर कि मुझे वापस जाना है. सो मेरे को आई नीड टू मेक श्योर दैट द साइन रिमेन द सेम.
अगर ये माइनस है तो ये भी माइनस होना चाहिए. 8 इक्वल टू -8 नहीं बोलूंगी मैं, राइट? So that means if this is negative, this has to be negative. Or I can say x minus 27 is less than equal to 0. Right? Or I can say x is less than equal to 27. Right? अच्छा मेरे पास कंडीशन क्या थी? ये वाली. अब इसके साथ and एक और आता है x less than equal to 27. Right? अब नेक्स्ट स्टेप सोचो क्या होगा? राइट? सिंस मुझे स्टेप पे जाना था, मुझे नीचे लिखना चाहिए था. हाँ, तो ये हो गया -1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 22 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 27. ये लिख दिया. नाउ आई कैन से दैट दिस स्टेप्स आर इक्विवेलेंट बिकॉज आई कैन गो बैक फ्रॉम दिस स्टेप टू दिस. आई कैन गो बैक. फिर एक बात बताओ, ये वाली जो इनइक्वालिटी है इसको इकट्ठा करके नहीं लिख सकते? यहाँ पे एनीवे -1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 22 और यहाँ पे बोल रहा है x लेस देन इक्वल टू 27. अब ये वाले नंबर तो ऑलरेडी इसके अंदर प्रेजेंट है, दोबारा से लिखो. अगर समझ नहीं आ रहा है तो नंबर लाइन पे चेक कर लो. नंबर लाइन पे चेक कर लो और कॉमन एरिया देख लो अपना. नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर. अब लाइक टर्म्स कंबाइन करें. अब सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हो गया 100x एंड दिस इज 300. राइट? तो x² माइनस अब 54x, ये -100x तो -154x, देन प्लस 729 माइनस 300 माइनस 429 इक्वल टू 0 एंड -1/2 less than equal to x less than equal to 22. Now, is this step equivalent to the previous one? Can you go back? Absolutely yes, because अभी तक तो हमने कुछ किया ही नहीं है, लाइक टर्म्स कंबाइन करें. राइट? अब ये क्वाड्रेटिक बनी. क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना. क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए चेक करना मिड टर्म स्प्लिट तो नहीं हो रही कहीं. As you can see मिड टर्म स्प्लिट नहीं हो रही है अनफॉर्चुनेटली, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा. राइट? तो लगा दें x इक्वल टू माइनस b, तो माइनस 154, so 154 प्लस माइनस 154 होल स्क्वायर, या 154 होल स्क्वायर लिख दो, -4. ऑलराइट, यहाँ पे प्लस था ना, ये प्लस होना चाहिए, माइनस नहीं था, बी केयरफुल. So 4 into 429 equal to, no, not equal to, divide by 2. Right? अब ये सिंप्लीफाई करना है. अब सबसे पहले यहाँ से मुझे 4 का फैक्टर मिल जाएगा, यहाँ से 4 का फैक्टर मिल जाएगा. क्यों? बिकॉज यहाँ पे 2 का फैक्टर है ना, मैं डिनोमिनेटर से होता हूँ, कैंसिल आउट तो करूँ पहले में. राइट? तो दिस इज x इक्वल टू 154 प्लस माइनस. अब 154 को ऐसे लिख लेती हूँ, 2 into 77 whole square minus 4 into 429 whole divide by 2. Right? 2 into 77 whole square. So ऐसे लिख लूँ 2 square into 77 square. 2 square into 77 square. Right? ये क्यों किया? Because ये क्या है? ये तो 4 है. So that means I will take 4 common out. So this becomes 154 plus minus 4 common लेके आके वो 2 बन जाएगा. फिर इसके बाद निकालोगे. So 2 into 77 whole square minus 429 whole divided by 2. अब 2 का फैक्टर कैंसिल आउट करें. This is 77. This becomes 1 and the denominator is disappeared. Right? क्या हो गया? Now 77 whole square. अगर नहीं आता कोई मेथड तो डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 77 to 77, that is not an issue. राइट? तो इसको सिंप्लीफाई करो और निकालो आंसर क्या आता है. स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी 77 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5500 आता है मेरे पास. या राइट? अपनी वैल्यू चेक कर लो. ये आया. नाउ हम कहाँ तक पहुंचे थे? हाँ, इसके बाद से मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व किया. राइट?
अब यहाँ पे x की दो वैल्यूज पॉसिबल है, x इक्वल टू 77 प्लस, तो ऐसे लिख लूँ 10√55, राइट, एंड दूसरी वैल्यू क्या है 77 माइनस 10√55, राइट, ये दो वैल्यूज आई हैं, बट because x पे एक कंडीशन है that x should lie in this interval, right, -1/2 less than equal to x less than equal to 22, right, ये satisfy होना चाहिए। अब मेरे पास दो solutions आ गए, that means my solution should lie in this interval, right। अब देख लेते हैं फर्स्ट क्या है मेरे पास 77 प्लस 10√55, बात बताओ 77 प्लस 77 से बड़ा, यहाँ पे तो 22 भी खत्म हो रहा है, राइट, कि डेफिनेटली ये वाली क्वांटिटी तो इस इंटरवल में लाई नहीं करेगी, राइट। अब नेक्स्ट वाली देख लेते हैं 77 माइनस 10√55, ये होगा 7 पॉइंट समथिंग, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 70 समथिंग, तो 77 माइनस समथिंग डेफिनेटली इसमें लाई करेगा, एस्टिमेशन लगा लिया करो, राइट। So this x equal to 77 minus 10√55 will lie in this interval. That's why this is the solution. अब ये चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों? Because you made sure that each and every step is the equivalent to the previous one. Right? Now there is no need for checking. दोबारा से इसको यहाँ पे पुट करने की जरूरत नहीं है. Not at all. This is your answer. All right. So the next question now. Question number 9. अपने solutions एक बार check कर लो question 9 के, because there are apparently two methods to do it. दूसरा method सोचो क्या हो सकता है? All right. So question number 9. Okay. Yeah. Question number 9. So this is root of 3x square plus 5x plus 8 minus root of 3x square plus 5x plus 1 equal to 1. Solve करना, right? अब solve करने से पहले obviously radical sign है, मैं दूसरी साइड लेके जाकर स्क्वायर करना चाहती हूँ, right? But दूसरी साइड पे शिफ्ट करने से पहले एक बार देख तो लो 3x square plus 5x, 3x square plus 5x, बार बार 3x square plus 5x लिखना पड़ेगा, इससे बेटर मैं सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ 3x square plus 5x, इसको क्या सब्स्टिट्यूट करें? Just put it y, right? So this is root of y plus 8 minus root of y plus 1 equal to 1. सिंपल हो गया थोड़ा, राइट? अब ट्रांसपोज करके स्क्वायरिंग करते हैं, तो रूट ऑफ y plus 8 equal to 1 plus root of y plus 1. This square, so this is y plus 8 equal to 1 square 1 plus this square, that is y plus 1 plus 2 into this, 2 root y plus 1, right? Oh, y cancel, so this is 2, यहाँ पे आके 6 equal to 2 into root y plus 1, or I can say root of y plus 1 equal to 3, right? Squaring करें, so y plus 1 equal to 9, so y is equal to 8, right? अब y सब्स्टिट्यूट क्या किया था मैंने? 3x square plus 5x, right? So that means 3x square plus 5x
इक्वल टू 8, राइट. अब यहाँ पे इसे ट्रांसपोज कर देते हैं, तो दिस इज 0, राइट. ये फैक्टर्स दिखते हैं ना इजीली. -24 कम होना चाहिए 5, so 8 into 3, so this is nothing but 3x square plus 8x minus 3x minus 8 equal to 0. So 3x common, not so x common, not 3x. X common, so 3x plus 8 minus 1 common, 3x plus 8. So x to 1 and minus 8 by 3. Right? बोलो ये आंसर है. पहले इतनी बार तो स्क्वायरिंग करिए. That means मुझे चेक करना पड़ेगा whether 1 is the solution of the equation or not. So 3 x की जगह आंसर चूज करो. 3 into 1, that is 3 plus 5. So that is 8. 8 plus 8, 16. 2 16 is 4, right? ये 4 आ गया. Minus 3 into 1, 3 plus 5 plus 1. This is 9. So root 9 is 3. 4 minus 3 is equal to 1. Satisfy कर रहा है. Great. अब similarly check whether minus 8 by 3 satisfies or not. Check करो. Come on, check it out. Whether it satisfies or not. Yes, it absolutely satisfies. So that means this is also the solution. Right? X equal to 1 and minus 8 by 3. Right? Now, this was the first method. Now, second method discuss karte hain, which is very interesting. Because that might help you to reduce the length of the problem tremendously. Right? So let's discuss that. Alright. So, this minus this equal to 1. Right? Square root वाली quantity. Square root वाली quantity. बड़ी बड़ी terms है. Right? बार बार लिखनी भी पड़ती है. But what else can we do? इतनी बड़ी term, इतनी बड़ी term. मैं इसको सब्स्टिट्यूट करती हूँ a. Root of 3x square plus 5x plus 8 equal to a. सब्स्टिट्यूट कर दिया. In fact, मैं इसको भी सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ. इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं b. Right? So root of 3x square plus 5x plus 1. Let this be b. मैंने दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दिया. Right? अब दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये मेरा बना क्या? a minus b equal to 1. a minus b equal to 1. अब तुम बोलोगे मैम इससे फायदा क्या? a minus b equal to 1 भी तो सॉल्व नहीं हो रही है. Right? Absolutely right. But एक बात बताओ, a minus b, ऐसी वाली term, this term is there in a very nice identity. तो identity हमें class 8 से आती है, maybe even from younger classes. Right? a minus b into a plus b. That is a square minus b square, right? Because a minus b की quantity की value है, right? That is equal to 1. एक बार मैं देखूं a square minus b square किसके equal है? Shall we check? Because a square would be a good quantity. Square root हट जाएगा यहाँ से, right? तो एक बार देख लेते हैं. A square is this quantity as in 3x square plus 5x plus 8 minus b square. B square is square of this, so 3x square plus 5x plus 1. Right? Minus sign था बाहर bracket के. Let's change the sign. So this is minus minus. Right? अब देखिए क्या हो रहा है. Oh, ये तो कैंसिल. ये भी कैंसिल हो गया. ये तो बन गया 8 minus 1, that is 7. So a square minus b square equal to 7. And a minus b equal to 1. अच्छा a square minus b square 7 है, a minus b 1 है. तो a plus b की वैल्यू क्या होगी? That will be equal to 7. Right? So a minus b equal to 1. A plus b equal to 7. तुम बोलोगे मैम इससे फायदा? आई थिंक हो तो गया. क्यों? तुम्हें a की वैल्यू भी पता है और b की वैल्यू भी पता है. 2 लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स सॉल्व कर दो.
सबसे पहले तो ऐड दो, तो 2a ये तो कैंसिल आउट होने वाला है, दिस इज इक्वल टू 8, so a is equal to 4, right? A is equal to 4, as in this quantity is equal to 4. So root of 3x square plus 5x plus 8 equal to 4, right? ये सॉल्व करना है, स्क्वायरिंग कर दो, सिंपल. This is 16. तो इस साइड ले आऊंगी, so this should be -8. In fact, इसको सॉल्व करने पे ही मुझे मिला था x equal to 1 and -8/3, राइट? कुछ ऐसे ही था ना. अब a मिल चुका है, मुझे x की रिलेटिव सॉल्यूशन भी मिल चुके हैं, राइट? अभी तो a मिला था, b की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से, कर दो कहीं पे. अगर ये 4 है, ये कितना होगा 3, तो b is equal to 3. b is equal to 3 as in this quantity is equal to 3. So root of 3x square plus 5x plus 1 equal to 3, right? Squaring करें, this becomes 9, right? So transpose कर दो, so this becomes -8 equal to 0. It's the same equation बन गई. So that means from this as well you'll get the same solution. And मेरे भी करेक्ट है. मेरे ख्याल से लेंथ भी काफी रिड्यूस हो गई है. वो हार्डली स्क्वायरिंग करनी है, सिर्फ ये आइडेंटिटी लगानी है. I think this solution is very elegant. You knew an identity, right? That a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. So I made use of that. So substitute किया, a इसको किया b, a minus b equal to 1, right? a square minus b square मुझे पता था it would be a nice quantity because ये वाला square है, square तो हट जाएंगे, right? a square minus b square. अब ये दोनों पता है तो a plus b पता है, a plus b पता है, a minus b पता है. That means you know the values of a and b. and तुम्हें values मिल गई. I think this is a shorter one. All right. So the next question is question number 10. Question number 10. All right. So this is x plus root of x square minus 1 will divide by x minus root of x square minus 1 plus root of x minus, no, यहाँ पे root नहीं है, x minus root of, so x minus root x square minus 1 will divide by x plus root of x square minus 1 equal to 98. Like कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन मिलता है, and the first thing that they do is कि this and this related है, ये इसका रेसिप्रोकली तो है, एक को सब्स्टिट्यूट करते हैं y, दूसरे को सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 by y, क्वाड्रेटिक बना लेंगे, राइट? हमारी क्वाड्रेटिक बनेगी ना, दैट वोंट बी वेरी नाइस. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एंड बहुत गंदे से रूट्स आते हैं, राइट? टेरिबल. सो फाइन, तुमने फर्स्ट मेथड प्रॉब्ली ये किया हो, राइट? बट वो तो वर्कआउट नहीं किया. व्हाट एल्स कैन वी डू, राइट? थोड़ी सिंप्लीफिकेशन तो कर सकती हूँ मैथ्स की, राइट? डिनोमिनेटर में लेते हैं this into this, so that is x minus root of x square minus 1 into x plus root of x square minus 1, right? अब denominator, अब this will be multiplied by this as an x plus root of x square minus 1 whole square plus this will be multiplied by this, so as an x minus root of x square minus 1 whole square equal to 98. बात बताओ ये है क्या? a minus b into a plus b, as in a square minus b square. I can say x square minus
तो डिसअपियर ही होगा। अब इसको ओपन अप करें, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको ओपन अप करें, एक्स स्क्वायर, अच्छा एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी था, 2 लगा दें, देन प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस माइनस 2x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 98। अब इसे कैंसिल भी हो गए, राइट, एंड यहाँ से 2 कॉमन लेके मैं वहां पे ले जाती हूँ, राइट, सो दिस बिकम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 49, और आई कैन से 2x स्क्वायर इक्वल टू 50, और आई कैन से x स्क्वायर इक्वल टू 25। अब x की वैल्यू आ गई x इक्वल टू प्लस माइनस 5, राइट, एंड इट इज बेटर कि तुम चेक कर ही लिया करो कि आंसर है कि नहीं, एंड ऑब्वियसली x equal to 5 is also the solution and x equal to minus 5 is also the solution. That's it, simplified kiya and you got the answer. Alright, so next one, that is question number 13. Alright, so question 13. Right, so this is root of x plus 1 minus 1 equal to root of x minus root of x plus 8. Right, out. Obviously, roots involve हो रहे हैं, squaring करनी है. In fact, I will square as it is. Right, so this square as in x plus 1 plus this square plus 1 minus 2 into root of x plus 1 equal to इसका square root हट जाएगा, तो x minus root of x plus 8. Right, right from, oh ये तो cancel ही हो गए, great, so this is 2 minus 2 root x plus 1 equal to minus root of x plus 8. Right, again यहाँ पे भी radical है, यहाँ पे भी radical है, तो वैसे स्क्वायरिंग करें, right, so this is 4 plus 4 into x plus 1 minus 2 into 2 into 2, so that is 8 into root x plus 1 equal to इसका स्क्वायर, that is x plus 8. Right, open up करें, 4x plus 4, right, साइड टर्म्स कंबाइन करते हैं, so this is 3x, तो कैंसिल ही होने वाला है, क्यों, ये 8 बनेगा and 8 is cancelled, so 3x इसको ट्रांसपोज इक्वल टू 8 रूट x plus 1. अब तुम बोलोगे मैम दोबारा से रेडिकल साइन, फाइन, दोबारा से स्क्वायरिंग कर दो, so this is 9x square equal to 64 into x plus 1. Right, so 9x square equal to 64x plus 64. Right, so ये मेरी क्वाड्रेटिक बन गई 9x square minus 64x plus 64 equal to 0. Right, and that you can easily solve. In fact, इसमें I think split भी हो जाती है मिडिल टर्म, so not an issue. And obviously, तुम्हारे जो solutions आएंगे, you need to check whether they satisfy the equation or not. तो इसमें तुमने बहुत बार स्क्वायरिंग करी है, so that means you need to check. All right, अपने आप कंप्लीट कर लोगे? हाँ नहीं, वैसे क्वेश्चन में स्क्वायरिंग ही करनी थी, that's it. All right, so next is question number 14. So let's do that. Okay, so this is 3x minus 2 by 2 plus under root of 2x square minus 5x plus 3 equal to x plus 1 whole square
डिवाइड बाय 3, राइट. अब सॉल्व करना है, ऑब्वियसली रेडिकल साइन इन्वॉल्व है यहाँ पर, राइट. स्क्वायरिंग तो करनी पड़ेगी, बट द इशू इज यहाँ पे भी स्क्वायर आ रहा है, राइट. ठीक है, स्क्वायर आ रहा है मतलब और फोर्थ पार्ट चली जाएगी ये तो, वेरी प्रॉब्लमेटिक. अब क्या कर सकते हैं, अब देखो यहाँ पे रेडिकल साइन है, राइट. इसको तो स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, तो मैं इसे एक साइड पे लिख लेती हूँ. दिस इज रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू x प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 3 माइनस 3x माइनस 2 डिवाइड बाय 2, राइट. दिस इज द सिनेरियो. अब ऑब्वियसली आई एम इंटरेस्टेड इन द स्क्वायरिंग. अब बट जैसे स्क्वायर करूंगी बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज आएंगी, स्क्वायरिंग करने से पहले सिंप्लीफिकेशन तो कर लूँ मैं, राइट. क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स है, एक बार एलसीएम लेके तो देखें इससे क्या होता है. अब सबसे पहले तो x प्लस 1 होल स्क्वायर है, इसको हटाओ, ओपन अप करो. दिस इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, राइट. अब एलसीएम लेते हैं, एलसीएम इज 6, so 2 will be multiplied by this, so this is 2 into x square plus 2x plus 1 minus 3 will be multiplied by 6, so 3 into 3x minus 2, right. And this remains as it is, root of 2x square minus 5x plus 3, right. So again root of 2x square minus 5x plus 3. अब open up करें back. This is 2x square plus 4x plus 2 minus 9x minus 2 whole divided by 6, right. So ये 4x है, ये हो गया minus 5x, minus 5x, and यहाँ पे था plus 2 plus 6 plus 8, right. ये बेनिफिट, कोई बेनिफिट तो नहीं हुआ ना हमें, देख लो एक बार. आई थिंक हो गया है बेनिफिट. क्यों, यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 5x, 2x स्क्वायर माइनस 5x, कौन बार बार लिखेगा. You should substitute 2x square minus 5x as 1. It would be easier for you. This is root of y plus 3 equal to y plus 8 whole divided by 6, right. अब स्क्वायरिंग करने में कोई इशू नहीं है, क्वालिटी बनेगी, you can easily solve it, right. Yeah, obviously squaring करिए, you need to check whether the solutions at the end satisfy the equation or not. तभी तुम decide करोगे whether they actually the solutions or not. Alright, so that is it for today's tutorial. Yeah, so that's it. I'll see you on Tuesday then again.